तो जैसा आप पिछली वीडियो में सुन चुके हैं, मैं मसीहत छोड़ रहा हूँ और मैं मसीहत क्यों छोड़ रहा हूँ वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप इस वीडियो को सुनें। But that is not the worst part. The most colossal blunder that the Greek-speaking Septuagint translators made is a mistranslation of the Hebrew text found in a book called Isaiah in chapter 7 verse 14. This is a verse in the Old Testament that is shown by Christians as an evidence of a prophecy for the futuristic event of the virgin birth of the Christian God-man Jesus. But the evidence fails the linguistic test and turns out to be a slip of the translators. The word used in this verse by the original Hebrew writers was Alma. Alma means a young woman of marriageable age, whether married or not, whether a virgin or has had sexual experience. Alma does not in any sense mean a woman who has not had sexual experience, which leaves room for being sexually active. If the Hebrew writers wanted to mean a woman who was a virgin, the word they would have used is Betula, which leaves no room for speculation or uncertainty as to the woman's virginity status. Now, Betula has been consistently used in passages where the writers were talking about mere ordinary women who were most definitely virgins, whether young or old, without any room for uncertainty. And this verse in Isaiah was about the mother of a God-man. Mother of Jesus cannot be an ordinary woman, and Alma can most definitely not be used for her. Because when Alma is used, she is a young unmarried woman with the probability of not being a virgin, which would be a blunder to use it for the mother of the Christian God-man. The Hebrew original says, Hinne ha-alma hara ve-yeldet ben ve-karat shemmo Immanuel. Honestly translated, the verse reads, Behold, the young woman has conceived and bears a son and calls his name Immanuel. The Greek translators of the Septuagint slipped up and translated Alma into the Greek Parthenos, which means virgin, which leaves no room for speculation or uncertainty with regards to virginity. But the slip did not matter at the time, for in context, Isaiah's prophecy had been given as a reassurance to King Ahaz of Judah that his royal line would survive despite the ongoing siege of Jerusalem by the Syrians. The prophecy had nothing to do with any virgin or her conception or the Messiah of the world or events in Bethlehem 800 years into the future. This slip was taken advantage of by the deceitful early Christians, allowing them to concoct their क्रिश्चियन बाइबल और क्रिश्चियन मिशनरीज के अनुसार जीसस का जन्म एक कुंवारी यानी कन्या के गर्भ से हुआ है। इसका मतलब जीसस की मां ने किसी भी पुरुष या अपने पति के साथ संभोग के बिना बाइबल के भगवान की शक्ति से जीसस का जन्म दिया है। क्या ये सच है? ईसाई मिशनरीज का कहना है कि उनके ग्रंथों में एक भविष्यवाणी है। उसमें लिखा गया है कि आइज़ाया 7:14, किंतु मेरे स्वामी परमेश्वर तुम्हें एक संकेत दिखाएंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी। वो इस पुत्र का नाम इमानुएल रखेगी। इसी कारण जीसस का जन्म एक कन्या के गर्भ से हुआ है। लेकिन सच है कि ऐसा कोई भविष्यवाणी जीसस के बारे में नहीं हुआ है। अगर हम हिब्रू बाइबल यानी हिब्रू भाषा में लिखा हुआ बाइबल में देखेंगे तो वहाँ पर कुछ इस तरह लिखा होगा। यहाँ पर आल्मा का अर्थ होता है 8 वर्ष से भी छोटी लड़की या एक यौवन लड़की। किंतु मेरे स्वामी परमेश्वर तुम्हें एक संकेत दिखाएंगे। देखो, एक यौवन लड़की गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी। वो इस पुत्र का नाम इमानुएल रखेगी। जब हिब्रू भाषा में लिखा हुआ बाइबल को ग्रीक भाषा में अनुवाद करते समय गलती से यौवन लड़की को कुंवारी या कन्या में अनुवाद किया गया है। जब लोग इस ग्रीक बाइबल को पढ़ रहे थे, उन्होंने जानबूझकर जीसस एक कन्या को जन्म लिया कहकर एक झूठा प्रचार शुरू किया। वो झूठ इतना बढ़ गया है कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और गॉस्पेल ऑफ लूक में एक झूठी कहानी भी मिला दिया। अगर आपको मेरे बात में विश्वास नहीं है तो मैं इसे पॉइंट टू पॉइंट प्रूव करूंगा।
यहाँ पर मैं इंग्लिश बाइबल और हिब्रू बाइबल का उपयोग करूँगा। जेनेसिस 24:16 न्यू इंटरनेशनल वर्जन। द वुमन वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ए वर्जिन, नो मैन हैड एवर स्लीप्ड विथ हर। शी वेंट डाउन टू द स्प्रिंग, फिल हर जार एंड केम अप अगेन। यहाँ पर वर्जिन का अर्थ होता है कुंवारी या कन्या। अब हिब्रू बाइबल में जेनेसिस 24:16 को देखिए। यहाँ पर हिब्रू भाषा में वर्जिन का अर्थ है दुल्हा। Deuteronomy 22:14 न्यू इंटरनेशनल वर्जन। एंड स्लैंडर्स हर एंड गिव्स हर अ बैड नेम, सेइंग, I married this woman, but when I approached her, I did not find proof of her virginity. यहाँ पर भी वर्जिन आया। अब हिब्रू में क्या लिखा है? वर्जिनिटी को हिब्रू में तुलिम कहा गया है। अब प्रोवर्ब्स 30:19 को देखिए, न्यू इंटरनेशनल वर्जन। The way of an eagle in the sky, the way of a snake on a rock, the way of a ship on the high seas, and the way of a man with a young woman. यहाँ पर यंग वुमेन को आल्मा कहा गया है, यानी यौवन लड़की। अगर आपको और प्रूफ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अब दूसरा पॉइंट, यहाँ पर उस बच्चे का नाम इमानुएल होगा, यानी भगवान हमारे साथ है। लेकिन बाइबल में कहीं भी जीसस को किसी ने इमानुएल नहीं कहा। जीसस एक ग्रीक नाम है, उसका असली नाम जोशुआ है। जोशुआ का अर्थ होता है बचाना या उधार देना। तीसरा वाला, द लॉर्ड हिमसेल्फ विल गिव यू अ साइन, बिहोल्ड द यंग वुमन शैल कंसीव एंड गिव बर्थ टू अ सन एंड शी शैल कॉल हिज नेम इमानुएल। यहाँ पर कहा गया है कि उसकी माँ उसे नाम देगा, लेकिन गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में कुछ इस तरह से कहा गया है। मैथ्यू 1:23 द वर्जिन शैल कंसीव एंड गिव बर्थ टू अ सन एंड दे विल कॉल हिम इमानुएल। यहाँ पर शी को दे बना दिया। आइज़ाया ने कहा है कि उसकी माँ उसे इमानुएल कहकर बुलाएगी, लेकिन मैथ्यू ने भविष्यवाणी ही चेंज कर दी। अब आखिरी पॉइंट, आइज़ाया ने क्यों दिया यह भविष्यवाणी? अगर हम पूरा आइज़ाया 7 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि एक अहस नाम का राजा है और उस पर दुश्मन देश आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। उससे प्रॉफिट आइज़ाया कहता है कि तुम डरो मत, युद्ध में तुम्हारी जीत होगी, भगवान तेरे साथ है। लेकिन राजा अहस विश्वास नहीं करता, इसलिए उसने आइज़ाया से पूछा, मैं कैसे विश्वास करूं? तब जाके आइज़ाया भविष्यवाणी बोलता है कि एक यौवन लड़की को एक बच्चा जन्म होगा, जिससे इमानुएल नाम से बुलाएगी। अब अगर राजा हर्ज को विश्वास दिलाने के लिए आइज़ाया ने भविष्यवाणी दिया तो इसका मतलब वो बच्चा युद्ध के पहले ही जन्म लेना होगा। लेकिन जीसस का जन्म युद्ध के 700 साल बाद जन्म हुआ है। इसका मतलब ये भविष्यवाणी जीसस के बारे में नहीं है। तो जैसा आपने इस वीडियो के अंदर सुना, मैंने इस आर्ग्यूमेंट को बहुत ढूंढा, बहुत खोजा। मैंने अपने फेवरेट पास्टर से पूछा, मैंने वीडियो ढूंढनी चाहिए, मैंने वीडियो को रिसर्च करा, लेकिन ना बजेंद्र सिंह ने, ना अंकुर नरोला ने, किसी ने भी इस वीडियो का रिप्लाई नहीं बनाया या इस टॉपिक के ऊपर किसी ने बात नहीं करी। और मैं थक हार के, किसी पास्टर ने नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया इस वीडियो के बारे में, मेरे फेवरेट में से। तो अब मैं इस वीडियो के अंदर एस्तर धनराज की वीडियो का रिप्लाई करने जा रहा हूँ। हाँ, आपने सही सुना, मैं इस वीडियो के अंदर एस्तर धनराज की इस वीडियो का रिप्लाई करने जा रहा हूँ। और अभी तक मैं एक ऐसे इंसान को या एक ऐसे मसीही को शो करने की कोशिश कर रहा था जो ऐसे फॉल्स टीचिंग्स में फंसा हुआ है, या फिर वो सच्चाई को नहीं खोजना चाहते, वो ऐसे आर्गुमेंट पे डील नहीं करना चाहते। जब उनके आगे कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप में से किसी को हर्ट हुआ, बुरा लगा तो मुझे माफ़ करें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा हमने एस्तर धनराज की वीडियो में देखा, उन्होंने कहा कि आल्मा शब्द का इस्तेमाल वर्जिन के लिए नहीं होता, बैतुला शब्द का इस्तेमाल वर्जिन के लिए होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? सबसे पहले हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि वर्जिन के लिए बैतुला का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं जेनेसिस 24:16 के अंदर, वहाँ पे वर्जिन के लिए जो शब्द हिब्रू बाइबल में इस्तेमाल हुआ है वो बैतुला है। पर अगर बैतुला का मतलब अपने आप में वर्जिन होता तो उसके आगे ये लाइन जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नो मैन
had know her। और इसी चैप्टर में हम आगे देखते हैं वर्स 43 में रेबिका के लिए आल्मा शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके आगे ऐसी कोई भी लाइन नहीं जोड़ी गई। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। बैतुला का यूज़ बाइबल में एक बार मैरिड वुमेन के लिए भी हुआ है। इसको आप देख सकते हैं जॉल 1:8 के अंदर। थर्ड पॉइंट, मूर्ति पूजक या अनैतिक काम करने वाले देशों के संबोधित करते हुए भी इसका इस्तेमाल हुआ है। हम इसको देख सकते हैं यशाया 23:12 के अंदर सियोन की कुंवारी बेटी, यशाया 47:1 के अंदर बेबीलोन की कुंवारी बेटी, जर्मिया 46:11 के अंदर मिस्र की कुंवारी बेटी। चौथा पॉइंट, रूबेन एल्की के द्वारा लिखी गई जूइश हिब्रू टू इंग्लिश डिक्शनरी में बैतुला का मतलब अलग अलग बताया गया है। उसमें आप देख सकते हैं उन्होंने मतलब बताया है कुंवारी, युवती, महिला, लड़की और नौकरानी बैतुला शब्द का। आपने अभी तक बैतुला के बारे में देखा कि बाइबल में बैतुला का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हुआ है। अब हम आल्मा के बारे में देखते हैं। बाइबल में आल्मा का इस्तेमाल 7 जगह हुआ है। जेनेसिस 24:43 जैसा आप पहले सुन चुके हैं। एक्सोडस 2:8 वहाँ पे मूसा की बहन मरियम को संबोधित करते हुए लिखा गया है। साम 68:25, सॉन्ग्स ऑफ सुलेमान 1:3, सॉन्ग्स ऑफ सुलेमान 6:8, यशाया 7:14, प्रोवर्ब्स 30:19। इन जगहों पे आल्मा का इस्तेमाल हिब्रू बाइबल में करा गया है। बाइबल में इन 7 जगह वर्जिन को शो करते हुए आल्मा का इस्तेमाल करा गया है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा सॉन्ग्स ऑफ सुलेमान 6:8, वहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, देयर आर 60 क्वींस एंड 80 कॉन्क्यूबाइंस एंड वर्जिन आउट ऑफ नंबर। यहाँ पे वर्जिन के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह आलमोट है, जो आल्मा का प्लूरल है। यहाँ पे जरूरी है कि हम क्वीन, कॉन्क्यूबाइन एंड आलमोत के अंदर भेद को जाने। क्वीन वो राजा की पत्नी होती है, कॉन्क्यूबाइन राजा की सेक्सुअल पार्टनर होती है, और आलमोत वो ग्रुप होता है जो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैंडिडेट होता है क्वीन या कॉन्क्यूबाइन बनने का। क्या हम इस चीज़ को बाइबल के अंदर और कहीं भी पाते हैं? हाँ, हम इस चीज़ को बाइबल के अंदर देख सकते हैं एस्तर की किताब उसका 2 अध्याय में, जहाँ पे हमें और क्लियर होगा। तो अभी तक हमने देखा कि बाइबल में आल्मा का जितनी बार भी इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ कुंवारी या वर्जिन ही है, और बैतुला का जितनी बार इस्तेमाल हुआ है वो मैं आपको बता चुका हूँ। चले अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एस्तर धनराज ने अपनी वीडियो में कहा कि ये भविष्यवाणी आहाज राजा को विश्वास दिलाने के लिए करी गई थी। क्या ये हकीकत है? चलें बाइबल के अंदर देखते हैं। यह उस समय की बात है जब यहूदा राज्य के ऊपर उत्तर में रहने वाले उनके इजरायली भाइयों ने अरामियों के साथ मिलकर उन पे हमला कर दिया, और ये हमला का मकसद ये था कि वह यहूदा से राजा को हटा के अपना राजा वहाँ पे बैठाएं, अपना राजा वहाँ पे स्थापित करें। दुर्भाग्यवश उस समय यहूदा का राजा आहाज था जो दाऊद के घराने से आता था। इस बात को याद रखें कि यहूदा में हमेशा दाऊद के घराने से राजा चुना जाता था। उस समय राजा आहाज राजा था और वो एक अविश्वासी मनुष्य था, उसको प्रभु पे भरोसा नहीं था। उसने प्रभु पे विश्वास रखने की बजाय विदेशियों से मदद लेनी चाहिए। प्रभु ने इस पर यशाया को उसके पास भेजा और उसे आश्वासन दिया कि तू प्रभु पे विश्वास रख, लेकिन उसने प्रभु पे विश्वास रखने से मना कर दिया। आप इस बात को पढ़ सकते हैं यशाया 7 उसका 3 से लेकर 9 में। फिर उसके बाद यहाँ तक प्रभु उसे चिन्ह भी देना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर प्रभु ने अपना फैसला बदला और राजा आहाज से बात न करके पूरे दाऊद के घराने से बात करी। आप इस बात को देख सकते हैं यशाया 7 13 से 16 के अंदर। यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है यशाया 13 में, देन ही सेड हियर नाउ हो हाउस ऑफ डेविड नॉट आहाज। ये दाऊद के पूरे घराने से थी, ना कि खाली आहाज से। जब हम इसकी और डीप स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है यशाया 7:13 और 7:14 एक प्लूरल सेंस में कही गई भविष्यवाणी है। हम देखते हैं यशाया 7 से 9 में प्रभु ने जो छुटकारे की बात की है वो उत्तर से आने वाले खतरे का आश्वासन है। पर जब राजा आहाज ने विश्वास करने से मना कर दिया तो छुटकारा उनको नहीं दिया गया। इसकी जगह इजराइल और सीरिया को
उनके ऊपर हमला करने की इजाजत दे दी गई। आप इसको पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास में। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यशायाह 7:13 से 16 के अंदर बताई गई छुटकारे की भविष्यवाणी उस समय के लिए नहीं थी, वह एक अनंत छुटकारे की बात हो रही थी जो मसीह यीशु में पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सेप्टुजेंट। सिस्टर धनराज ने अपनी वीडियो में कहा सेप्टुजेंट को मिस ट्रांसलेट करा गया। आइए हम जरा सेप्टुजेंट के बारे में देखते हैं। सेप्टुजेंट को प्री क्रिश्चियन एरा में यहूदियों द्वारा ट्रांसलेट करा गया और इन यहूदियों ने आल्मा का ट्रांसलेशन पैर्थनोस, ग्रीक शब्द पैर्थनोस से करा, जिसका कॉमन मतलब होता है वर्जिन। इन ट्रांसलेटर्स ने जेनेसिस 24:16 जहाँ पे बैतुल्ला इस्तेमाल हुआ है और जेनेसिस 24:43 जहाँ पे अल्मा इस्तेमाल हुआ है रेबिका के लिए, उन दोनों जगह भी पैर्थनोस का इस्तेमाल करा। तो हमें इस बात से ये पता चलता है कि जो प्री क्रिश्चियन जूइश थे या प्री क्रिश्चियन यहूदी थे, उनके लिए ये दोनों शब्द पर्यायवाची थे वर्जन के। ये मिस ट्रांसलेशन वाली बात क्रिश्चियंस के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चालू की गई जब उन्होंने डिबेट करना चालू करा। आई होप आपको आंसर मिल चुका होगा इस वीडियो में, और अगर आपका और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे दिए गए हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल कर सकते हैं और हमसे वार्तालाप या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा में बढ़ते रहें, खुदा उनके जलाली नाम में जड़ पकड़ते जाएं और सच्चाई को जानें। सच्चाई का आत्मा आपको आज़ाद करेगा। खुदा यीशु के नाम में शालोम सभी को।